Hi friends, myself Harshvardhan Oza. I am Recruitment cum Development Officer and Senior Business Associate in LIC of India Surat Division. Here I display my contact detail. Today we are going to see a wonderful topic, why startup is required, and especially why startup in 2020. So, are you looking to take your life into the next level and want to earn a big money and achieve your financial freedom? What is financial freedom? You have time as well as you have money and you spend your money as you like. So this is called financial freedoms. Nowadays, what is the problem, my friend? Those people who are having money, they don't have the time, and those people who are having the time, they don't have the money. So in real meaning, if you want to achieve the financial freedom, so you can make whole the system, so in perfect way you can achieve your financial freedom. Looking for an opportunity to decide what kind of life you want to live. आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को कैसी लाइफ जीनी है. इफ यू आर हार्ड वर्किंग एंड डोंट नीड टू लुक एट द क्लॉक, एंड इफ यू विलिंग टू डू whatever it takes to achieve your dreams in life. So startup is the only way, my dear friend. If you are looking this kind of life or this kind of dream, startup is the only option. We can see step by step all the options. My dear friend, if you don't build your dream, अगर आप अपना खुद का सपना नहीं बनाते हो तो someone else will hire you to help them build. अगर आप अपना खुद का सपना अचीव करने के लिए काम नहीं करोगे तो someone else, कोई ऐसा और इंसान होगा जो आपको हायर करेगा उसके खुद के सपने पूरे करने के लिए. तो why not do your own startup, my friends? Present job scenario. If we look, India is a very young economy and we are only growing younger. Average age of India, if we can see at this time, average age of India is 29 to 30 years, 30 to 32 years, and 65% of our people in the working age group. And this working age group for next 20 to 30 years, it will continue. Maybe for 2040, 2045, this younger group can work. And we can, if we will see the job scenario, according to government estimate, to cater this working age group, जो लार्ज एज ग्रुप है इंडिया के अंदर, उसको फुलफिल करने के लिए टू नीड टू क्रिएट अराउंड 1 to 1.5 करोड़ जॉब्स पर ईयर फॉर द नेक्स्ट डिकेड. माय डियर फ्रेंड्स, आने वाले 10 साल में अगर इतने बड़े जनसंख्या को अगर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है तो एवरी ईयर गवर्नमेंट हैज टू create a 1 to 1.5 crore jobs every year. And for especially because today's scenario, maximum millennials and generation Z, as we have seen, the 30 to 35 years of age peoples are more, and they can work for 2040 to 2045. So large business in India, both in public and private sector, will not be able to generate employment at a such a large scale, my dear friend. There will be a fierce competition to get a good jobs. एक तो इतनी सारी पॉपुलेशन के लिए जॉब जनरेट करना भी मुश्किल है, और दूसरी उसके अंदर कंपटीशन भी इतना टफ है, माय डियर फ्रेंड. इफ वी सी द सर्विस, ओवर 93,000 कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग 3,700 PhD होल्डर्स अप्लाई फॉर जॉब इन यूपी. यूपी कई ऐसे स्टेट है इंडिया के अंदर जहाँ पे populations बहुत ज़्यादा, my dear friend. They have to migrate to other state for their life. अपने फैमिली मेम्बर और अपनी कमाने के जरिए के लिए उनको दूसरे स्टेटों में माइग्रेट होना पड़ता है, स्पेशली यूपी एंड बिहार से. सो यू कैन सी इन इंडिया व्हाट द सिचुएशन, माय डियर फ्रेंड्स. 2 lakh youth including MBA, engineer and graduate apply for the jobs of sweeper and watchman. बड़े शर्म से कहना पड़ता है कि जो जॉब क्रिएशन चाहिए इंडिया में, उसके सामने इतनी बड़ी पॉपुलेशन है. एक तो जॉब क्रिएट करना वैसे भी मुश्किल है, और अगर उसके सामने जनसंख्या इतनी ज़्यादा है तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, माय डियर फ्रेंड. और इतने सारे ऐसी अगर अपॉर्चुनिटी होगी कि जहाँ पे पीपल ज़्यादा है और सप्लाई कम है सामने जॉब का, तो मान लो कि आपको मुश्किल से सर्विस मिल भी गई तो वो सैलरी के अंदर आप
ग्रो नहीं कर सकते हो, आपके ड्रीम्स अचीव नहीं कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू डू योर ओन स्टार्टअप. Looking at current job scenario, it is advisable to work for yourself and start your own business and provide employment to others. Startup, by way of startup, you can do your work by your own business you can do, and also provide employment to others, my dear friends. I am an entrepreneur. I am building my own empire, and I am the master of my destiny. अगर एंटरप्रेन्योर थॉट्स लेके अगर हम लोग आगे चलते हैं तो खुद के लिए तो कुछ कर ही सकते हैं और दूसरों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं. माय डियर फ्रेंड, राइट डाउन 3 नेम्स द पर्सन whom यू कंसिडर अ वेल्दी. चाहे इंडिया के ले लो या पूरे वर्ल्ड के ले लो, ऐसे 3 लोगों के नाम लिखो एक कागज पे जिसको आप समझते हो कि दे आर रियली वेरी हेल्दी पीपल. आउट ऑफ दी 3 नेम, अगर आपने वो 3 नाम लिख लिए हैं, हाउ मेनी आर इन द सर्विस सेक्टर? फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट चल रहा है. अगर आपने वो 3 नाम लिखे और आपको लगता है कि वो 3 बहुत वेल्दी पर्सन है, चाहे वो इंडिया के हो या अब्रॉड के हो, लेकिन अगर आप उनको वेल्दी कंसिडर कर सकते हो तो हाउ मेनी आर इन द सर्विस सेक्टर्स? प्रोबेबली नन. एंड दिस प्रूव्स दैट बिकम अ वेल्दी यू हैव टू बी इन द बिजनेस. Out of business peoples, you know how many have inherited business? अगर आपने वो बिजनेस क्लास पीपल लिख लिए है तो उसमें से कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको वारसागत बिजनेस मिला हो, मतलब अपने पिछली पीढ़ी से उनको बिजनेस रेडीमेड बिजनेस मिला हो, और हाउ मेनी ऑफ सेल्फ मेड? तो एक सर्वे था, उसके अंदर अकॉर्डिंग टू सर्वे रिपोर्टेड टाइम्स ऑफ इंडिया, आउट ऑफ द वर्ल्ड्स 100 रिचेस्ट पीपल, ओनली 27 आर हेड्स, एंड ऐसे 27% ही होते हैं जिनको लीगल हेल्थ एज अ लीगल हेल्थ वो बिजनेस वारसे में मिलता है, लेकिन 73% हैज टू डेवलप देयर ओन बिजनेस. सुपर अचीवर्स आर नॉट born, they are self-made peoples. Super achievers are not born, they are self-made people. They can create their own business. One's own struggle will make you a super achiever, and super achievement is not got through inheritance but is a self-acquired success. बहुत सारे जो 73 पीपल सक्सीड है, जो उन्होंने सक्सेस हासिल किया है, वो ऐसे लोग हैं उन्होंने खुद अपना एम्पायर बिल्डअप किया है. सुपर अचीवमेंट इज नॉट गुड थ्रू इनहेरिटेंस बट सेल्फ एक्वायर्ड सक्सेस. अपने आप डेवलप किया वो बिजनेस होता है, माय डियर फ्रेंड्स. तो 4 रीजंस टू गो फॉर अ स्टार्टअप इन 2020, स्पेशली फॉर मिलेनियल एंड जनरेशन जेड्स. आज हमारे देश में जो मिलेनियल्स की संख्या है, मिलेनियल्स मतलब दोज हु आर बोर्न आफ्टर 1980s और 1985 and they can work for next 30 years, my dear friend, ऐसी जनरेशन. सो उनको क्या एडवांटेज रहेगा अगर आज वो स्टार्टअप चालू करते हैं? तो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल रिटर्न्स. मोर टाइम्स यू स्पेंड एज एन एंटरप्रेन्योर द बेटर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स यू विल गोइंग टू गेट. अगर आज की तारीख में अगर वो अपना खुद का स्टार्टअप चालू करते हैं तो उनके पास एज एन एंटरप्रेन्योर मोर टाइम होगा टू डेवलप करने के लिए, और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स यू विल गोइंग टू गेट फ्रॉम योर स्टार्टअप. अगर आज की तारीख से आप चालू करते हो तो एट दिस एज यू हैव फ्यू कमिटमेंट्स एंड मच मोर टाइम टू डेवलप योर बिजनेस. मिलेनियल्स की एज ऐसी होती है कि उनके पास अभी कोई कमिटमेंट लायबिलिटीज ऐसी होती नहीं है फैमिली के लिए, एंड मच मोर टाइम टू डेवलप योर बिजनेस. तो पूरा टाइम अपने बिजनेस के लिए दे सकते हैं. मोर एनर्जी एंड मोटिवेशंस. एट दिस एज यू हैव मोर एनर्जी एंड मोटिवेशंस एंड एंथुसियाज्म टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस पर्सनल असेट्स, स्पेशली फॉर मिलेनियल जनरेशन जेड जिनके बारे में हम लोग बात करते हैं. वो अभी यंगर है और थोड़ी सी मैच्योर भी हो गई है. तो टेक एडवांटेज ऑफ दिस पर्सनल असेट. कौन सी असेट? दे आर मोर एनर्जेटिक, दे आर मोर मोटिवेटेड एंड एंथुसियास्ट. मोर एडेप्टेबिलिटी. स्टार्टअप्स फेसिस मेजर टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन और रेगुलर बेसिस. स्टार्टअप्स में माय डियर फ्रेंड्स टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल रहता है, और टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन एट एल्डर एज यू कैन एक्सपेक्ट मोर चेंजेस. सो अगर यंगर एज होगा तो आप एडप्ट कर सकोगे टेक्नोलॉजी को एज मच एज फास्टर. एट दिस एज यू स्टैंड बेटर चांस ऑफ रिकॉग्निशन एंड इनकॉर्पोरेटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज क्विकली, एज आई सेड माय फ्रेंड. समरी ऑफ व्हाई स्टार्टअप इन 2020. सो अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब विल बी लेस, क्योंकि बहुत कम जॉब है. सो गेटिंग गुड जॉब्स विल बी वेरी डिफिकल्ट इन दिस हाईली कॉम्पिटिटिव सिनारियो. इफ यू वांट टू बिकम अ वेल्दी देन यू हैव टू बी इन द बिजनेस. हमने जैसे देखा कि सर्विस क्लास में आपका ग्रो बहुत नॉमिनल रहता है, और लॉन्गर टर्म पे देखा जाए तो आपका कुछ ग्रो ही नहीं होगा.
So the only way is to do business or your own startup. People who have started own business have become more successful than those who have inherited. अगर हमको लगता है कि बिजनेस करना अपने बस में नहीं है, वो तो जिसको वारसे में मिला वही कर सकता है, तो वो रॉन्ग आपका थॉट्स है माय डियर फ्रेंड. As we have seen, the survey of Times of India what said 73% people started their own business and developed by their own, not in inheritance. It is advisable to go for a startup in your 2020s. You will get satisfaction for creating jobs for others. So make informed decision and begin your startup now, my dear friends, and you will be glad to choice made by you. अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो आपके डिसीजन पे आपको प्राउड होगा माय डियर फ्रेंड. This is the benefit of entrepreneurs. Job satisfaction, success, freedom and happiness and money. This is all, my dear friends. So we have seen why startup is necessary and benefit of why startup is required, and especially why for in 2020s. In next episode we will see the benefit of startup and why startup as an SLIC advisor we can see in detail. I can show you in detail the presentations. लेकिन why startup, अगर आपको कुछ अचीव करना है माय डियर फ्रेंड्स, स्पेशली दोज मिलेनियल जनरेशंस, तो यू कैन ज्वाइन माय startup as an SLIC advisors. I have send you my WhatsApp link and Facebook group link, so you can get more detail in that. Thank you very much, friends.